आणि याच कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अभिनेता अक्षय कुमार एकाच मंचावरती आले। यावेळी विद्यार्थ्यांशी संवाद देखील साधण्यात आला आणि हगणदारी मुक्त महाराष्ट्राचा संदेश देण्यात आला। राज्य सरकारने ठिकठिकाणी शौचालय बांधावी आणि त्याची माहिती एका ॲपद्वारे लोकांना द्यावी असं मत अक्षय कुमारने व्यक्त केलेलं आहे। अक्षयच्या या कल्पनेचं मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केलंय। शिवाय लवकरच याबद्दल सरकार विचार करेल असं आश्वासनही दिलंय। तर दुसरीकडे टॉयलेट एक प्रेम कथा नावाचा आपला चित्रपट लवकरच येतोय असं देखील याच कार्यक्रमात अक्षयने सांगितलं। Thank you so much. Thank you, Akshay Kumar and CM sir. Ladies and gentlemen, my question is, what goes into this process? Does he go for a special thinking or special policy as to which can account for this growth? See, I have sir, first of all, thank you very much, sir, for watching all my films. And I have this thing called my digital team, which comes and tells me there are so many fans, there are so many people who come on Twitter, Facebook, Instagram. They have so many questions. They tell you, "Ki sir, why don't you do this kind of a movie? Why don't you?" So I do get all of them, and I read them and I understand, because actually the ideas are lying within them. So, and then once I get the idea from them, then I research about it. You know, it's unbelievable the kind of stories India have. Like अब मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा. Okay, now टॉयलेट एक प्रेम कथा, as you guys will know, 54% of India still don't believe in using toilets. वो खेतों में जाना चाहते हैं, वो बाहर गंदगी फैलाना चाहते हैं, एंड वो समझते हैं कि आसमान खुला हो, वहां बैठने में ज्यादा मुक्ति रहती है, ज्यादा मजा आता है, rather than कि just being in the toilet. एंड ऐसी ही एक कथा मुझे मिली कि जहां एक औरत ने, you know, it is yes, we guys are all laughing about it, but it is very important to understand कि हम लोग भी कितने डेंजर में हैं। और मैं ये कहानी के बारे में आप लोगों को कह रहा था कि ये कहानी है एक औरत की, कि कैसे उस औरत ने रियलाइज किया कि जहां उनकी शादी हुई तो देयर वाज नो टॉयलेट, एंड शी आस्क्ड फॉर डिवोर्स. शी आस्क्ड फॉर डिवोर्स एंड शी विल नॉट बी देयर जहां टॉयलेट नहीं. मैं एक सेंटेंस बोलने वाला हूं जो मेरी फिल्म के अंदर है, अगर बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए. एक सिंपल सी बात है. जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं जोर से कह रहा हूं, अगर बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए. मत शादी करना. द काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन women get, the kind of humiliation they go through. I have sat down with women and talked to them जिनके पास नहीं है, जिनको खेतों में जाना पड़ता है, जिनके परिवार वाले ये विश्वास करते हैं कि जहां खाना बनाया जाए, जहां खाना बनाए वहां हगे. That is the kind of thinking they have, and it is a very sad thinking they have. We have to change it. This 54% has to go down half, and I believe the movie which I have made in an entertaining way, that people will go and watch it and try and help change India. So I would like to say something to the CM Saab. Sir, can I? Sir, please. I was just thinking, sir, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, जैसे हमारे महाराष्ट्र में, वैसे पूरे इंडिया में, याद है जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, we used to have STD booths. मतलब ISD फोन करना है, STD फोन करना है, तो हम जाते थे, चलो भाई STD बूथ पे ले लो, एंड we used to go there. हाँ, वहां रोको ड्राइवर, वहां ISD बूथ है, मैं अमेरिका फोन करना है. Now everybody has mobiles, everybody can call up. Now those STD booths and ISD booths have gone out. How about, sir, वो जो हमने इतने आसानी से STD ISD booth बना दिया, how about making a male and female toilets, a very kind of a toilets there, to those, after every 500 meters or maybe 1 kilometer, if we have toilets where anybody, and which has been taken care of by some ex-teacher or by ex-army person or whoever, I mean, say, wants to take care of it, and charge 10 rupees for person to use it, because
ladies have so much of problems for, waiting. They have to control. I know a DM, by the way, district magistrate, who had a kidney problem because she was not access to toilet and she had that problem because they cannot go. So sir, ये एक छोटा सा सुझाव था. मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सुझाव है. इट्स एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा सजेशन आपने दिया है और निश्चित रूप से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. और इसमें सुलभ ने इतना अच्छा मॉडल हमको दिया है तो उसी मॉडल को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं. और जैसा हम विदेशों में भी देखते हैं कि 500 मीटर पर, 1000 मीटर पर, हाईवेज पर भी हमको कहीं पर भी 2 किलोमीटर बाद, 5 किलोमीटर बाद टॉयलेट मिलता ही है. और वो साथ इसलिए होता है कि उसमें थोड़ी यूजर फी ली जाती है. हम शायद उतना न ले, कम ले, लेकिन मुझे लगता है ये बिल्कुल डुएबल है और विल ट्राई टू डू इट. सर एक और चीज, और सर, इफ वी कैन हैव महाराष्ट्र हैव एन ऐप, अ टॉयलेट सर्च, इज कॉल्ड search of toilet app, where people can just go into it and which is the nearest toilet, just take a left turn, something like this, it's just a small idea. वाओ. उसी हम लोग जो कह रहे थे कि अक्षय की उम्र नहीं बढ़ी, तो ये सारे कॉलेज स्टूडेंट्स जिस प्रकार का सजेशन दे रहे हैं वैसे इनोवेटिव सजेशन अक्षय ने भी दिया है. और आज यहाँ 11 प्रेजेंटेशन होने वाले थे, मैं इसको 12वां समझता हूँ और आई थिंक दिस इज द बेस्ट. निश्चित रूप से जितने टॉयलेट्स हैं इनका जियो टैगिंग करके उनको हम ऐप पर लाएंगे सो दैट किसी को भी अगर टॉयलेट की जरूरत है तो वेयर इज द नियरेस्ट टॉयलेट, he will be able to know. Congratulations.